Hello dear students, how are you all? I show you these two images. कितनी disparity है ना? Yes, one image is from city and one from village. क्या ये disparity होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि economic well-being of a country depends on a balanced development, yes, of the villages and the cities. But is it happening? Is it so? Where are you living? In village or a city? Yes. तो इस disparity को दूर करने के लिए who is concerned? Who is observing these callous attitude of city people towards these village folks? Who is bothered? Why farmers, even after 74 years of independence, are committing suicide? क्या हो रहा है ये? रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर. तो कौन है इन सब के लिए? कोई लिख रहा है? यस, उसी का डिस्कशन करेंगे. 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ. अ पोइट इज देयर हुज पोइट्री टॉक्स अबाउट कैरेक्टर ऑफ पीपल, लैंडस्केप स्टॉपिंग बाय वुड्स, ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स, complexities of life, dust of snow. Yes, choices. How difficult is it to make a choice in life? The road not taken. Now you have idea. Yes, the poet Robert Frost I am talking about, whose poetry for centuries to come, Frost's name and works will remain enshrined in the minds of poetry lovers across geographies and cultural boundaries. तो मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास आपकी पोम 5 A रोड साइड स्टैंड. A रोड साइड स्टैंड जो आपने देखे ही होंगे, आप भी गए होंगे टूर पर अपनी गाड़ी में, तो आपने देखे होंगे रास्ते में रोड साइड स्टैंड. ये सैक होता है, स्मॉल बिल्डिंग वुडन की बनी हुई, छप्पर कह लो आप उसको. अंडर डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर वो लगा लेते हैं, ऑरेंजेस बेचते हैं वहाँ पर, ऑरेंज जूस बेचते हैं या अदर फ्रूट वेजिटेबल. यस, तो इन दिस पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हियर इज अपीलिंग टू सोसाइटी फॉर इक्वल शेयर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ही ऑब्जर्व्स मैसिव डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और वो कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अनइक्वल इन सिटीज एंड विलेजेस. दोनों में बड़ा फर्क है, जो इमेजेस मैंने आपको भी दिखाई हैं. यहाँ पर रियलिस्टिक डिपिक्शन किया है उन्होंने रियल लाइफ का, जो इसका थीम भी है कि कंट्रास्ट दिखाना चाह रहा है वो इन द लाइफ ऑफ सिटी पीपल एंड विलेज फॉक. वो प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड विलेजर्स, डिस्पैरिटी इन लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ सिटी एंड विलेज पीपल, और careless attitude of rich politicians where no one seems to be concerned about. These villagers ask for, they implore, but these city people give no empathy to them. उन्हें कुछ होता ही नहीं है कि हाँ चलो डेवलपमेंट का कुछ हम इनको भी दें, इनसे ये सामान ही खरीद लें. This poem is a satire. What they feel those city people, this alienation पर ये satire है. वे oblivious समझते हैं अपने आप को. They even do not notice them. चमचमाती गाड़ियों में हाईवे पर दौड़ते चले जाते हैं. तो आपने भी विजिट किया होगा. Have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? How many travelers stop there to eat? How many travelers stop there for their other reasons? How the shopkeepers are treated by rich people? और वो कैसा उनका बिजनेस है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाइए. और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लीड. ये क्वेश्चन उठाता है कि दीज पीपल आर bereft ऑफ मनी, दे आर कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, एंड पोइट इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस एंड ही कंटेम्पलेट्स this pain in this poem.
Yes, I am talking about a roadside stand, your poem 5 class 12. But before going further, I would like to say to subscribe to my channel so that you can get notification of all my future videos. You can join my WhatsApp group where you can send me your roll number, name, class and school name on my WhatsApp number 9466707359 पर. We will add you in our group. You can visit our website mynewclassroom.in पर भी आप जा सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं कि इस ब्यूटीफुल पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो जाने जाते हैं अपनी पोम्स के लिए, आपने ऑलरेडी 9th में 10th में भी स्टडी किया, तो एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, साथ ही फिगर ऑफ स्पीच भी हम इसमें बताएंगे. द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed. देखिए आप, old, out और little, little, तो alliteration और repetition, a word or phrase is repeated 2 or more times. देखिए आप, तो little, little 2 बार यूज हो रहा है. In front at the edge of the road where the traffic sped. तो आप देखिए आप, shed, sped. Yes, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering paint. The polished traffic passed with a mind ahead. ग्रेट, कितने देखिए आप, ग्रेट. स्टैंजा 1 में आपको बता देते हैं, डिटेल में चलते हैं. तो यहाँ पर कहता है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. देखिए आप कि उसने एक बनाया है, जो विलेजर है उसने एक मेकशिफ्ट काउंटर बनाया है सड़क के किनारे, टू सेल हिज फार्म आइटम्स, जो भी वो बेच रहा है. इसमें आगे आ भी रहा है, वाइल्ड बेरीज बेच रहा है, वो स्क्वाश बेच रहा है, गॉर्ड है वो, है ना. तो जहाँ से क्या हो रहा है कि चमचमाती, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से चमचमाती जो हैं कारवांस जो हैं पास्ड अलोंग द हाईवे, बिना उनकी परवाह किए. आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन आ रहा है, वेयर हेयर यू कैन सी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है इन रोड साइड स्टैंड जो है पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो भाई रुको, है ना, हमारी ये लेबर का जो ये फ्रूट एंड डिस्क्राइब्ड जैसे लोग हों वो. तो पर्सनिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमन ट्रेट आ रहे हैं, इमोशन आ रहे हैं. इट वुड बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड. तो ऐसा नहीं है कि वो उनसे कोई भीख मांग रहा है कि रोटी का टुकड़ा उन्हें चाहिए, नहीं. बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. नहीं, वो कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही जितना आप अपने घर में शहर में रहते हुए फ्लावर्स की ही जो करते हैं ना आप देखभाल में, जितना खर्चा कर देते हैं गार्डनिंग में, है ना, उसका भी एक पार्ट ही वो आपसे चाह रहे हैं. इतना खर्चा तो आप उन फूलों पे ही कर देते हैं. और लेकिन वो जो पॉलिश ट्रैफिक है जिससे वो प्लेड कर भी रहे हैं, है ना, जो वेल टू डू क्लास है, वो कितना कंसर्न है. पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक देखिए, एक तो चमचमाती कारें हैं, वो नहीं है यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट इन विच मॉडिफाइड. पॉलिश जो लगा यहाँ पर क्वालिफाइज ए नाउन ट्रैफिक अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग. अब ये पॉलिश ट्रैफिक ये नहीं कि चमचमाती कारें, बल्कि वो जो लोग हैं ना, वेल टू डू पीपल जो हैं, वो चमचमाते अमीर लोग, पास्ड विद ए माइंड अहेड, क्योंकि दे हैव देयर ओन डेस्टिनेशंस, दे हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट दीज पीपल. जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड बनाया है वो क्या बेच रहे हैं, उनकी क्या हालत है. तो दूसरे स्टैंजे में देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा फिगर ऑफ स्पीच में ट्रांसफर्ड एपिथेट आ रहा है पॉलिश ट्रैफिक में, और पैथेटिकली प्लेड में अ रोड साइड स्टैंड दैट टू में पर्सनिफिकेशन आ रहा है. ओल्ड आउट में देखिए फर्स्ट लाइन में ओ रो का है, एलिट्रेशन आ रहा है जहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटिल लिटिल आ रहा है, रेपिटेशन आ रहा है. तो चलिए दूसरे स्टैंजे में चलते हैं. और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स. उन्हें लगता है कि अगर वो देखते भी हैं तो उन्हें लगता है आउट ऑफ सॉर्ट्स. आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स कि थिंग्स जो हैं हैफाजार्डसली जो वहाँ सेट हैं, और हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये लोग सारा इन्हें हमारा इतना अच्छा लैंडस्केप था और इन्होंने ख़राब कर दिया है. Of sign that with N turned wrong and S
टर्न रॉन्ग। अब यहाँ देखिए टर्न रॉन्ग, ये भी रेपिटेशन आ रहा है कि एस और एन के साउंड जो डायरेक्शन को दिखाना है वो भी नहीं मालूम, उल्टे लगा रखे हैं इन्होंने। सब इनका ये गड़बड़ है, इन्होंने सब नाश कर रखा है, ये ख़राब कर रखा है इन्होंने हमारे लैंडस्केप को। हमारा इतना अच्छा सीनरी आ रही थी। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वार्ड्स। तो वो क्या बेच रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया है। वाइल्ड बेरीज हैं वुडन क्वार्ट्स में, बोतल में या कंटेनर में वुडन के वो रखे हुए हैं। और जो है क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, स्क्वाश जो है एक काइंड ऑफ वेजिटेबल है, गॉड कहते हैं, घिया कद्दू, विद सिल्वर वार्ड्स जिसके ऊपर जो हैं स्मॉल हार्ड ड्राई लंप्स भी हैं। तो ये आप देख पा सकते हैं, इसकी वो बात कर रहा है, वो बेच रहे हैं। तो उनको ये है, दे आर फीलिंग कि दे शुड स्टॉप ओवर हियर टू बाई सच फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम देयर फार्म एंड देयर वेल्थ हैज़ मेड देम ब्लाइंड टू सच हम्बल एंड प्राइसलेस ऑफरिंग कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द फील्ड्स। कि हम खेतों से ताज़े ताज़े लेकर आए हैं और शेल्डम डिड दे लुक एट इट, वो तो देख भी नहीं रहे हैं। और इफ़ एवर दे डिड इट वाज मोर टू एक्सप्रेस डिस्गस्ट कि ये क्या कर दिया है, लैंडस्केप ख़राब कर दिया, एन और एस के ये भी ख़राब कर दिया आपने, हैं। पुअरली पेंटेड है आपका ये एंड पुअरली डिस्प्लेड जो आपके नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बोर्ड हैं, इस पर वो बात करते हैं। तो ये था। अब थर्ड में देख लेते हैं। Or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt to the scenery won't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. उन्होंने जो है माउंटेन की जो ये ब्यूटी है वो ख़राब कर दिया, लैंडस्केप ख़राब कर दिया। लेकिन ये पुअर पीपल जो उनकी तरफ से पोइट कह रहा है कि यू हैव द मनी एंड इफ़ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी तुम जो हो मीन बने हुए हो, उसको निकालना नहीं चाहते हो, हमारे लिए कुछ बाई ही कर लो आप। वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, चले जा रहे हो। द हर्ट टू द सीनरी वॉन्ट बी माई कंप्लेन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह की कंप्लेन कभी ना करता कि ये सीनरी ख़राब कर दी है। अरे इन विलेजर्स की सोचो आप। सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज़ अनसेड हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि हमने यहाँ पर शहर से दूर ये रोड साइड स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि सिटी का कुछ पैसा नीचे आए, यानी सिटी से गांव की तरफ भी जो है डेवलपमेंट आए। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। और हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे जैसे लोग और ना बढ़ें, ये पावर्टी और ना बढ़े। वो किस पर डिपेंड है? सिटी पीपल पर, रिच पीपल पर डिपेंड है। आप आओ तो सही, थोड़े कंसर्न्स दिखाओ तो सही। एंड गिव अस द लाइफ वो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, कितने प्रॉमिस करते हो आप, सब जवाब दिखाते हो हमें, होता तो कुछ भी नहीं। और ये पॉलिटिकल पीपल की बात करता है। तो जो ये इंडिफरेंस है वेल्दी सिटी फॉक्स का इज़ क्लियरली डिसगस्टिंग। द पॉलिटिकल पावर इज़ क्लियरली टाइटल इन फेवर ऑफ द सिटी ड्वेलर्स, कि झूठे वादे करते हैं, 5 ईयर्स में आते हैं वो वादे करते हैं और फिर सुनवाई सिटी पीपल की है। 4th स्टैंजा में देखिए, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, और ये सब जो ये शहर के लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, जो इकट्ठे हो गए हैं, जो एक तरह से बिजनेस क्लास है, कमर्शियल माइंडेड पीपल हैं। दे गो टू द विलेज टू बाई देयर लैंड, जो भी उनके पास है वो भी वो खरीद लेना चाहते हैं। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वॉन्ट have to think for themselves anymore, while greedy good doers beneficent beasts of prey, देखिए आप कितनी सुंदर लाइन है, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो देखिए आप, प्लान है उनके, a new relocation plan, अरे तुम यहाँ से हट जाओ, वहाँ चले जाओ। For these poor villagers is in the offering, ये ऑफर दे रहे हैं आपको कि कंफर्ट होगा, अर्बन लाइफ में जाएंगे आप। and these simple folks will be forcefully uprooted from their land and made to live inside the urban limits।
शहरीकरण हो रहा है, बिसाइड थिएटर मॉल्स के आसपास उन्हें बसाया जाएगा। नो वन बोदर्स टू टेक देयर कॉन्सेंट, उनकी कंसेंट तक नहीं ली जाती। नो टू स्टडी हाउ डिसओरिएंटेड द विलेज फॉक विल फील इन देयर न्यू हैबिटेट्स। कहाँ जाएंगे ये लोग? स्वीट टॉकिंग गलीबल रूरल फॉक्स जो हैं, गलीबल हैं ये लोग। द लैंड शार्क्स विल फ्लीज देम ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स एंड कंडेम देम टू लिव इन अर्बन सेंटर्स। और क्या होगा? दिस चेंज विल ब्रिंग देम मिजरी, देयर सिंपल लाइफस्टाइल विल बी डिस्ट्रॉयड and in their new habitat they will lose sleep। जबकि वो कहते हैं कि चैन की नींद सोना, आराम से, कोई टेंशन नहीं, जबकि वो लूज करेंगे अपनी स्लीप को, implying that life will become riddled with difficulties। On the other hand, the manipulators and the wolves in the garb of benefactors will enjoy their lives in great luxury। देखिए आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्लीप 2 बार हुआ, रेपिटेशन आ रहा है। ग्रीडी गुड डूअर्स, अब अगर आप ग्रीडी हैं तो गुड डूअर कैसे हो सकते हैं? गुड डूअर हैं तो ग्रीडी कैसे हो सकते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, वेयर अ पेयरिंग ऑफ 2 वर्ड्स टुगेदर दैट आर अपोजिंग और कंट्राडिक्टरी यूज करता है यहाँ पर। दूसरा भी आप देख पा रहे हैं, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे। अब अगर बीस्ट ऑफ प्रे हैं तो जेनरस कैसे हो सकते हैं, है ना? बेनिफिसेंट मैंने जेनरस, और अगर आप जेनरस हैं तो बीस्ट ऑफ प्रे कैसे, शिकारी कैसे हो सकते हैं आप? तो यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन लगा है और रेपिटेशन आया है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं, 5th में। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली हियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। पर्सनिफिकेशन आ रहा है यहाँ भी, देखिए, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। लर्क छिपी हुई है, जो जैसे टाइगर छिप के शिकार करता है ना, वो लर्किंग करता है। यस, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। एक्सपेक्टिंग समथिंग दिस क्रूअल वर्ल्ड कैन नॉट डिलीवर, दिस रेजिग्नेशन मेक्स हिम एंग्री एंड सैड। वो सोचता है दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। किसकी वेट कर रहे हैं? ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया, जिन्होंने जो अपनी जो है एग्रीकल्चर का जो फ्रूट है वहाँ लेकर बैठा है, वेजिटेबल लेके बैठे हैं, जो दे आर वेटिंग कि पीपल शुड स्टॉप देयर। स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। सेल्फिश कार्स, यहाँ पर देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट आ रहा है ना, तो यहाँ सेल्फिश कार्स हैं ये, यानी कार में बैठे हुए लोग सेल्फिश हैं, कारें थोड़ी सेल्फिश होती हैं। यहाँ पर जो सेल्फिश है, जो एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज ए नाउन कार अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। यस, तो जो वो हम्बल फार्मर है वो लुक करता है एक्सपेक्टेंटली एट ईच एंड एवरी पासिंग कार, होपिंग दैट दे वुड स्टॉप एंड मेक सम परचेजेस, हाउएवर हिज वेट रिमेन्स फर्टाइल। द पैसेंजर्स इन द कार seldom bother to stop near the sack, buying another from such a poorly exhibited stall in below their dignity। तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें रुकना चाहिए, वे चले जाते हैं। सेल्फिश कार्स दैट पास। यस, देखिए, जस्ट वन टू इंक्वायर, और कोई रुकता भी है तो क्या पूछने के लिए रुकता है? ब्रेक लगती हैं, रुकता है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर, कितने का है, उससे भी वो बार्गेनिंग करते हैं क्या? एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। कोई उनकी ग्रास को क्रश करता है कि मुड़ना है, हमें टर्न लेना है। एंड अनदर टू आस्क, अ साउंड देखिए, एलिट्रेशन आ रहा है। द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, पेट्रोल है, ये पूछ रहा है। देखिए आप, दे कुड नॉट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या उन्हें नहीं मालूम ये हो सकता है उनके पास, पेट्रोल या गैस हो सकती है। तो दे आर वेनली होपिंग दैट they could sell something at least to carry home a little cash। कारें रुकती हैं at rare intervals, cars are stopping there, but it is either for asking some direction to the city or taking a turn in his backyard or for filling gas। देखिए आप स्टैंजे में देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। The farmers heard breaks when such visits, which are few and far between, do not result in any tiny business for him। छोटा सा भी धंधा नहीं वो जमाने देते हैं
वी कुछ तो परचेज भी कर लें। द एटीट्यूड ऑफ वेल्दी फॉक्स लीव द पोइट एग्जेस्परेटेड। यस, देखिए आप 6th में देखिए, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कंट्री कंट्री देखिए रेपिटेशन आ रहा है यहाँ पर। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन। यहाँ देखिए द पोइट रिग्रेट करता है कि डिस्पाइट द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स वास्ट sources of earning, social welfare and concern for the downtrodden in rural areas has never been the national agenda. I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. कि एक ही है इसका इलाज, तो बस इन सब लोगों को गरीबी ख़त्म होना हो, गरीबों को ख़त्म कर दो एक झटके में, एक वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, शायद ही उन्हें दर्द से छुटकारा मिलेगा। The compassionate poet dreams here that he could, in one master stroke, banish the sorrow and suffering of the toiling and deprived masses from the morass of poverty. वो कह रहा है, वो इलाज बताता है, वो ऐसा करें। शायद वो झुंझला गया है, झुंझलाहट में कह रहा है, और अगले ही समय वो संभलता है, कहता है एंड देन नेक्स्ट डे As I come back into the scene, जब मैं फिर से होश में आऊँ, ये मैं क्या कह गया, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो मैं चाहूँगा कि मुझे भी मेरे दर्द से छुटकारा दिलाया जाए, ये दर्द जो उसको है। कि why city people are having callous attitude towards these village folks, why they are not concerned, why fruit of development is not shared, why is there disparity. ठीक है, तो this was beautiful poem by Robert Frost, a Rothschild 10th 12th class students. I am coming next in important questions which are asked in your board exams, those 2 marks and 5 marks question. Hope you will join me there also. Thank you for being with us. You all are wonderful people. God bless you all.